السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، صدق الله العظيم۔ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف: هو يعكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، رواه ابن ماجه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اور اس میں روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو نوازا۔ جیسا کہ اب ہم سب لوگ جانتے ہیں، رمضان کے تقریباً 20 دن ہو چکے ہیں، اور رمضان المبارک کا جو آخری کا عشرہ ہے، یعنی آخری کے جو 10 دن ہیں، وہ آج مغرب سے شروع ہونے والے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام خاص طور پر کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک عبادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے بعد سے لے کر اپنی وفات تک، دنیا سے پردہ کر جانے تک پابندی کے ساتھ ہر سال کرتے رہے، وہ تھا اعتکاف۔ تو انشاءاللہ آج کے اس جمعہ میں اعتکاف کی فضیلتیں ہم لوگ سمجھیں گے۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا، تو یہ جو آخری عشرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اعتکاف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعتکاف نہیں شروع ہوا، بلکہ انبیاء علیہ السلام، پچھلے انبیاء علیہ السلام جو آئے ہیں، ان کے زمانے میں بھی اعتکاف ہوا کرتا تھا۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وعدہ لے رہا تھا: وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ جو میرے گھر کو صاف کرو، کس کے واسطے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے واسطے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے واسطے، ورکوع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے۔ تو وہ زمانے سے، یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے یہ اعتکاف کا جو عمل ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کی بہت فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اچھا، پہلے اعتکاف کسے بولتی، اسے مختصر سمجھیں گے، پھر اس کے بعد فضیلت۔ اعتکاف کسے بولتی بولے تو ڈکشنری کے حساب سے، لغت کے حساب سے اعتکاف کے معنی کیا ہے بولے تو ایک جگہ رکے رہنا، ایک جگہ ٹھہرے رہنے کو اعتکاف بولتے ہیں۔ شریعت کے حساب سے اعتکاف کسے بولتے بولے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے، اللہ کو خوش کرنے کے واسطے، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، مردوانے ہیں تو مسجد میں، عورتیں ہیں تو گھر میں اپنی نماز کی جگہ میں عبادت کی نیت سے دنیا کے سارے کام دھام چھوڑ کر بیٹھ جانے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ تو اس اعتکاف کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معتکف ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے سب سے بڑا انعام یہ دیتے ہیں کہ وہ یعکف الذنوب، وہ خود بخود گناہوں سے بچ جاتا ہے رمضان کے بابرکت مہینے میں، اور رمضان کے خاص طور پر آخری عشرے میں، جس میں اسے بہت سارے اللہ کی طرف سے انعامات ملنے ہیں، جس میں اسے بہت سارے نیکیاں کمانے ہیں، اس مہینے میں وہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ اب انہیں اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے جو نیکیاں نہیں کر سکتا، مثال کے طور پر ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا، اعتکاف میں بیٹھ گیا، گھر میں ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا، اور اسی طریقے سے کوئی انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے میں نہیں جا سکتا، کوئی بیمار ہوا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، کسی غریب کی مدد کے لیے نہیں جا سکتا، بہت سارے نیک کام انہیں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف میں رہنے کی وجہ سے انہیں جو نیک کام نہیں کر سکتا، اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اسے دیتا۔ اور امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ کی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری کے 10 دن کا اعتکاف کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے نہیں، وفات تک۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اس کو اہتمام کے ساتھ کرتی تھی۔ تو رمضان کے آخری کے 10 دن میں اعتکاف کی جو فضیلت ہے وہ کسی اور چیز کی فضیلت نہیں ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کا جو ثواب ہے وہ کسی اور چیز کا نہیں ہے۔
एहतिकाफ छोड़ को फलां नेक काम है वो करेंगे, जमात में चले जाएंगे, नहीं। एहतिकाफ को जो सवाब मिलता वो आप दुनिया के किसी भी काम में रमजान के आखिरी 10 दिन में नहीं पा सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पाबंदी के साथ करें, एक बार भी छोड़े नहीं बोले तो हमें अंदाजा लगाना कि इसकी कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक और हदीस में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमजान के आखिरी 10 दिन का एहतिकाफ करते थे, लेकिन जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा कर गए, जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाए, उससे पहले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे के साथ उससे पहले अशरे का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिकाफ करें, यानी रमजान के 20 दिन का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिकाफ करे थे। और उसके अलावा एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के पहले 10 दिन का एहतिकाफ करें, फिर उसके बाद दूसरे 10 दिन का एहतिकाफ करें, फिर उसके बाद जब 20 दिन मुकम्मल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करें कि मैं शब कदर को तलाश करने के वास्ते, शब कदर को पाने के वास्ते 20 दिन एहतिकाफ किया, लेकिन मुझे बताया गया कि शब कदर जो है वो रमजान के आखिरी 10 दिन में है, उसके वास्ते मैं आखिरी 10 दिन का भी एहतिकाफ करता हूं। तुम में से जो लोग शब कदर को पाना चाहते हैं वो आखिरी 10 दिन का एहतिकाफ करो, बोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। तो उसके अलावा उलमा ये कहते हैं कि रमजान के आखिरी 10 दिन का जो एहतिकाफ है ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है, यानी पूरे मोहल्ले की तरफ से एक आदमी तो भी बैठना जरूरी है। पूरे मोहल्ले की तरफ से ये एक आदमी भी अगर एहतिकाफ न बैठा सबको गुनाह होता। तो उसके वास्ते इसकी जो अहमियत है उसको समझने की जरूरत है, और हमारे मसाजिद को एहतिकाफ से रमजान के महीने में आबाद करना जरूरी है। मैं उसके वास्ते ये पॉइंट दबा को बोलता हूँ, क्या वास्ते का, तो रमजान के आखिरी 10 दिन में एहतिकाफ ही इंपॉर्टेंस रखता, इसके अलावा दूसरी इबादतें इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं रखती। उसके वास्ते दूसरे तीसरे काम तुम्हें क्या तो करते ही, तो वो छोड़ डाल को एहतिकाफ के वास्ते टाइम निकालो, एहतिकाफ के वास्ते वक्त निकालो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हज़रत मौलाना मंजूर नोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, जबरदस्त तालीम गुजरे। उन्होंने अपनी किताब मारिफुल हदीस में एक बात लिखी है, वो क्या बोले तो अल्लाह तबारक व तआला रमजान जो है वो मुसलमानों की तरबियत के वास्ते और मुसलमानों को अपना कुर्ब देने के वास्ते देता है। सबसे पहले हम लोग रमजान में एक काम क्या करते हैं, रोजा रखते हैं। रोजे से अल्लाह तबारक व तआला रूह को पाकीज़ा करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नफ्स को कंट्रोल करने की ताकत देता। क्यों बोलो, दिन भर बहुत सारी खाने की चीजें हमारे पास रहती है, खाना बोले तो कौन रोकते भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के वास्ते हम लोग रुके रहते हैं, तो इससे हम लोगों को गुनाहों पर कंट्रोल मिलता है। तो कंट्रोल करने की जो ताकत है अल्लाह ताला वो रोजों के जरिए से देता है। और अल्लाह तबारक ताला अपना कुर्ब देने के वास्ते रमजान के आखिरी 10 दिन का एहतिकाफ रखा है। एहतिकाफ में क्या रहता बोलो, दुनिया के पूरे झंझटान छोड़ डाल को सिर्फ अल्लाह के वास्ते आकर मस्जिद में बैठ जाने को एहतिकाफ बोलते हैं। उसका काम क्या भी नहीं, उसका काम सिर्फ ये है कि अल्लाह को राजी करना। एहतिकाफ में वाला क्या करता, कुरान पढ़ता, जिक्र करता, कुछ दिन की बातें बोलता या फिर सुनता, नमाज पढ़ता, कुछ भी इबादत करता, नहीं बोले तो सो जाता। उन्हें सोया तो भी उसे इबादत, उन्हें खाया तो भी उसे इबादत, उन्हें उठाया तो इबादत, बैठा तो इबादत, जब तक एहतिकाफ में रहता तब तक इबादत ही इबादत। तो उसके वास्ते आज मगरिब से शुरू होता, यानी जो एहतिकाफ बैठने वाले हैं, रमजान के आखिरी 10 दिन का एहतिकाफ बैठने वाले हैं, आज असर के बाद मस्जिद में आकर नियत कर लेना, चांद ईद का चांद देखकर उठ जाना 10 दिन, ये सुन्नत एहतिकाफ है। सुन्नत एहतिकाफ के वास्ते रोजा जरूरी है, रोजा रखे तो ये सुन्नत एहतिकाफ 10 दिन का एहतिकाफ कर सकते। रोजे के बगैर सुन्नत एहतिकाफ नहीं होता। वाजिब एहतिकाफ भी रोजे के बगैर नहीं होता। वाजिब एहतिकाफ किसे बोलते बोले तो मन्नत मान लेते, मेरा फला काम हो गया तो मैं 3 दिन एहतिकाफ बैठ लूं, तो ये वाजिब एहतिकाफ है। तो ये एहतिकाफ के वास्ते भी रोजा जरूरी है। रमजान के आखिरी 10 दिन का एहतिकाफ सुन्नत एहतिकाफ है, ये एहतिकाफ के वास्ते भी रोजा जरूरी है। नफिल एहतिकाफ 3 दिन का एहतिकाफ, 2 दिन का एहतिकाफ, 4 दिन का एहतिकाफ, या फिर बगैर मन्नत के कभी भी बैठने वाला एहतिकाफ, उसके वास्ते रोजा शर्त नहीं है। तो नियत करो कि इंशाल्लाह हम लोग मसनून एहतिकाफ करेंगे। नहीं 10 दिन हमें बैठ सकते नहीं तो कम से कम 3 दिन, नहीं भाई 3 दिन में हमें बैठ सकते नहीं, फुल बिजीएस्ट पर्सन एवर हमें बोले तो 1 दिन कम से कम 1 दिन। इससे मालूम होता कि एहतिकाफ क्या चीज है करने का हमें समझ में आता। एहतिकाफ में बंदा बहुत सारे इनामात पाता। पहला इनाम क्या बोले तो गुनाहों से बच जाता। दूसरा इनाम क्या बोले तो उन्हें एहतिकाफ में रहना चाहिए, सवाब का काम, उन्हें क्या भी करने की जरूरत नहीं, उन्हें सो गया तो भी उसे सवाब मिलता रहता, जागा तो भी सवाब मिलता रहता, तो उसे सवाबित सवाब। तीसरा काम क्या बोले तो एक फरिश्तों वाले माहौल में रहता और फरिश्तों के साथ अल्लाह तबारक तआला उसे मुशाबहत दे डालता। क्या भी बेकार काम आने का, खाली अल्लाह के वास्ते इबादत, खाली अल्लाह को राजी करने के वास्ते अपने आप को रोके रखना, तो उसे फरिश्तों से मुशाबहत भी अल्लाह तबारक तआला दे डालता। और उसके अलावा क्या बोले तो अल्लाह तबारक तआला जो एहतिकाफ करता है उसके और जहन्नम के दरमियान दूरियां बढ़ा देते, 3 खंदकों की दूरी। अब वो खंदक का तो क्या, उसमें कितनी दूरी, वो सब समझने सर का शार्ट में समझना बोले तो अल्लाह तबारक तआला मुतकिफ और जहन्नम के दरमियान खूब दूरियां बढ़ा देते, यानी एहतिकाफ करने वाले को अल्लाह ताला जहन्नम से दूर लेकर चल जाते और अपने से करीब लेकर लेते। तो उसके वास्ते भी एहतिकाफ करना। और उसके अलावा रमजान में एहतिकाफ करने का, और खास तौर पर रमजान के आखिरी 10 दिन में एहतिकाफ करने का फायदा यह है कि शब कदर उसको आसानी के साथ मिल जाती है। आखिरी के 10 राता में
اور 5 ताख़रात में कौन सी रात लैलतुल कद्र मालूम नहीं। और लैलतुल कद्र के बारे में अल्लाह ने फरमाया खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीना से बेहतर कहते एक रात। वो रात में इबादत करना बोले तो नसीब बनाना, वो नसीब आराम से मिलना, टेंशन नहीं सर का बोले तो 10 दिन एतकाफ में रहे बोलो आराम से मिल जाते। कई को कहते हैं एतकाफ में हो को सो गए तो भी सवाब। मिसाल के तौर पर शब कदर थी, एतकाफ उन्हें एतकाफ की हालत में था, उस दिन जाग को इबादत करना था, उन्हें सो गया, एतकाफ में सो गया ना, तो उसे बराबर सवाब मिल जाता। तो ताख़रातें भी अभी ये आखिरी के 10 दिनों में आ रही हैं, तो वो ताख़रातें भी उसे आसानी के साथ एतकाफ की हालत में मिल जाती है। ये भी एक फायदा है एतकाफ। और इसके अलावा एक नहीं दो नहीं कितने की फजीलत, उन सब फजीलतों में बड़ी 2 फजीलतें। पहली फजीलत क्या बोले तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी के साथ अपनी जिंदगी में करे सो एतकाफ, रमजान के 10 दिन का एतकाफ। तो हमारे नबी से हमने मोहब्बत है तो हमें बैठ जाना, बात खत्म। सबसे बड़ी बात क्या बोले तो एतकाफ बैठने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता, अल्लाह का कनेक्शन मिलता, बंदे और अल्लाह के दरमियान एक बॉन्ड पैदा होता। तो उससे बढ़कर क्या होना बोलो, अल्लाह हमारा हो गया तो बाकी सब चीजें हमारे हल हो गई। तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के वास्ते एतकाफ एक बेहतरीन जरिया है। तो एतकाफ की फजीलत के बारे में मेरा ख्याल है कि इतनी बातें काफी है। तो आप में से जो लोग नियत नहीं करे हैं वो लोग नियत करें कि इंशाल्लाह रमजान के 10 दिन का एतकाफ बैठेंगे। अगर 10 दिन करें तो कम से कम 3 दिन का एतकाफ। लेकिन इस साल है ना इंशाल्लाह गए साल के मुकाबले में ज्यादा आदमी एतकाफ में बैठना। एतकाफ में बैठ को क्या क्या कर सकती बोले तो खा सकती, पी सकती, सो सकती और जरूरत के वास्ते जा सकती, ठीक है। और उसके अलावा कुरान की तिलावत, जिक्र, नमाज, तस्बीह, ये सब नेक कामा कर सकते और जरूरत की बात भी कर सकते। ये छोड़ को बेकार बातें करने का, रील्स देखने का, फोन यूज करने का और लेटरिन को बोल को जाकर वहां किसी से गप्पे लगा ले को बैठ जाने का, वजू को बैठ को बातें लगा लेने का, मस्जिद के बाहर ज्यादा वक्त गुजारने का, ये जायज नहीं, इससे एतकाफ टूट जाता है। तो उसके वास्ते जो लोग एतकाफ की नियत करे हैं वो काबिल मुबारकबाद है, और जो लोग नहीं करे हैं वो कर लें, एतकाफ की नियत कर लें, कम से कम 3 दिन का, कम से कम 1 दिन का। लेकिन इस साल एतकाफ करेंगे और उसका मजा देखेंगे कि अल्लाह से कैसा बढ़ना। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक तआला हम लोगों को रमजान की सही कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, और खास तौर पर ये बचे कुछ जो 10 दिन रह गए हैं इन दिनों की अल्लाह तबारक तआला, और जो खास तौर पर आखिरी अशरा है इसकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। ताक़रातों में जाग कर इबादतें करने और अल्लाह को राजी करने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए, और एतकाफ करने की अल्लाह तबारक तआला हमें तौफीक नसीब फरमाए। और अब तक जो इबादतें हम लोग करते आए हैं, जो रोजे हम लोग रखे हैं, जो तरावी हम लोग पढ़े हैं, अल्लाह तबारक तआला इसको अपने फजल से कबूल फरमाए, और जो ज़कात है और जो सदका खैरात हम लोग करें अल्लाह इसको कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक तआला इस रमजान को हमारे मग़फ़िरत का फैसला करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।